participants to join the class. Okay, ma'am. Okay. We were doing India, the land of monsoon climate. Yes, no? Hello? Yes, ma'am. Hello? Hello? Yes, ma'am. Hello? We were doing India, the land of monsoon climate. Yes or no? Hello? Hello, children. Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Oh. ma'am. Yes. No. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. India, my motherland. We were studying. Yes. We were studying India, my motherland. Which chapter we were studying? Ma'am, chapter 6. Chapter 6, India, my motherland. Okay. Okay, dear children. तो आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं. Yes, बहुत कम बच्चे हैं. वो हम देख रहे हैं. बहुत ही कम बच्चे हैं. हम लोग का पोर्शन यही है ना? लेसन 6 है ना पोर्शन? Yes, ma'am. Lesson 6, 16 and 24. 6, 16 and 24. I think we have completed India, my motherland. Division of India, my motherland, isn't? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Now today 16. All of you open page 16, chapter 16. Have you opened? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now start reading of the chapter. One by one. आप लोग पढ़ेंगे इसको. I will listen. Ma'am, first अभिज्ञान. चलिए शुरू करिए. अभिज्ञान से शुरू करते हैं. Okay, ma'am. ऊपर. chapter अभिज्ञान number के- 16. Chapter number 16, the Gupta Empire. You have read in the earlier chapter about Kusan rulers. Their last powerful ruler was Vasudev. Thereafter, there was no large empire in India for a few centuries. The next large empire was the Gupta Empire. It was established by Sri-Gupta in 275 CE. He was succeeded by his son Ghatotkacha Gupta. He ruled from 280 CE to 319 CE. However, not much is known about these two rulers. Important rulers. Chandragupta I. He succeeded his father Ghatotkacha in the year 319 CE and ruled up to 335 CE. He was the first important ruler of his dynasty. It was during this period that the Gupta Empire expanded and their authority was established over almost the whole of North India. He assumed the title of Maharaja Dhiraj. Maharaja Dhiraj. Okay. Okay. Yes, ma'am. Now Jayant Kumar. Jayant Kumar. Yes, ma'am. Okay, Jayant, start now. Samudragupta, he was the next powerful ruler. He succeeded his father Chandragupta in 335 CE.
are three main sources of period of Samudragupta inscription on Ashoka pillars at Allahabad, iron edicts, coins of Samudragupta. Samudragupta was known as long military companions to north, south, and south, east, and south of India, which established his सोवर्जिनिटी, सोवर्जिनिटी, देखिए बोलिए, सोवर्जिनिटी बोलिए, sovereignty, but not his district डायरेक्ट rule. रूल, डायरेक्ट Direct. रूल, DIR डायरेक्ट है वो। हाँ चलिए, ओके He नेक्स्ट is चलिए। known as हाँ, Napoleon of India, but the Gupta Empire was not as large as that of the Mayuras. मौर्याज, मौर्याज, Mauryas. He got a lot of information about Samudragupta from प्रशस्ति, प्रशस्ति, Prasasti Prasasti. Haris of his court. हरिसेना ऑफ हिज कोर्ट, ओके Yes, ma'am. ओके ओके जय। नाउ अर्कजा यशस्वी, Yes, ma'am. Chandragupta II. He was the son of Samudragupta and succeeded him in 375 CE. According to an inscription on the iron pillar at Mehrauli near Qutub Minar, he assumed the title of Vikramaditya. The inscription also tells us about the victory campaigns of campaigns, Chandragupta. victory campaigns of Chandragupta, yes, Chandragupta was not only a great warrior and an able administrator, but also a great patron of art and learning. He had many scholars, poets, and artists in his court. The best nine were known as Navaratna. That is, Kalidas was a renowned poet of his court. okay, good. Now Anika Sri, 7A, 6A, sorry. Anika Sri, am I audible to you? Yes, I know. No people has on video except me and you. You are right. Anika Sri, Adarsh Kumar. Adarsh Kumar, am I audible to you? Sarans? Vaishnavi, 6A. Vaishnavi? Yes, ma'am. Yes, Vaishnavi. चलिए पढ़िए वैष्णवी। वैष्णवी, Vaishnavi, are you listening me? Vaishnavi? Vaishnavi? No response I am getting. Aryan Hansraj. Aryan Hansraj? Shivam Raj? 6A? Janvi? Janvi? Vaishnavi, are you listening me? Vaishnavi? Tejashwi? करवा रही है, हम क्लास में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। Who? Hariom Kumar. Hariom. Hariom. Yes, ma'am. Hariom. चलो start करो. चलो. Administration. The king was all powerful but ensured the welfare and happiness of the people. He had council of ministries like Mantri, Sachiv, Sachiv. Sachiv. Sachiv, हाँ. Sachiv, हाँ. Sandhi संधि विग्रह, संधि विग्रह, हाँ. Sandhi Vigrahak, Mahasenapati, etc. They advised and assisted him, but the king was not bound to accept their advice. The empire was divided into provinces known as Bhuktis or Desh. They were governed by Upari ka Maharaja or Bhukpati.
Jodhpati. Yes. Mostly princes were appointed to these posts. Sometimes other capable and wise persons were also appointed on this post. The provinces Provinces. who The the provinces, provinces Bhuktis. Bhuktis Bhuktis. were divided Yes. into Visayas and Vishyas. Vishyas, and their head It was was known as Vishapati. Vishapati. Visapati. Yes. Visapati. They were helped by a four-man non-governmental committee. The village administration was under the village headman Graham. The Gramik. Gram Gramik. Panchayat, the Gram Panchayat looked after the needs of the villagers. Yes. Do you know? Huh. The Gupta rulers had well organized armies with elephant, courtiers, Chariots. Cavalry. cavalry, and foot soldiers. Besides there were military leaders known as Samantas. 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 Huh. Samantas was Hmm. supplied to king wherever Needed. needed. Okay. Good. Hariom. Very good. बहुत बढ़िया. मैडम आप क्या करवा रही है? हम अभी अभी ज्वाइन हुए हैं. रीडिंग कर रहे हैं बच्चे. Now Ma'am, may Adarsh I? Kumar. Ma'am, Adarsh chapter Kumar. 16. Adarsh Kumar. Adarsh Kumar. No. Anika Shri. Anika Shri. May I, Tejashwi? हाँ तेजस्वी पढ़ो तेजस्वी. चलो. Yes, Yes, तेजस्वी. हाँ. Social condition. The people had a happy and peaceful family life. Joint family system was prevalent during this time. The condition of women was not so bad, but it came worse during the later periods. Child marriage has also started. Education was mostly limited to the upper class families. Celebration of festivals and animal fightings were the chief sources of entertainment. Safe नहीं chief source. Chief. बोलिए chief sources. Chief हाँ. sources of entertainment. हाँ. Economic condition. Economic Tejaswi. condition. हाँ. Interstate trade flourished during this period. Trade was carried on by land and river routes. Important places like Peshawar, Mathura, and Kaushambi, Tamralipti, Bharu-Kacha, and Ujjaini were all connected by roads. The rivers, namely Ganga, Brahmaputra, Kaveri, Krishna, and Godavari, provided waterways. India's important export items were pearls, diamonds, precious stones, garments, ivory products, indigo, etc. The import included gold, silver, copper, tin, silk, horses, etc. Brahmadesh, Java, Sumatra, Bali, Champa, and Cambodia were some of the countries with which the foreign trade was carried on. Agriculture Yes. was the occupation of the people. The farmers were the owners of land. For providing irrigational facilities, wells, tanks, canals were constructed. The main crops were wheat, rice, pulses, barley, sugarcane, cotton, jute, vegetables, etc. Taxation remained the main source of revenue. बहुत बढ़िया. Very good. एक और तेजस्वी आता है वो नहीं है क्या अभी आज क्लास में? It's not in the class. No, ma'am. 6A का तेजस्वी वो नहीं है. He is not in the class. No, ma'am. 6B का ही है. B का. तो 6B का B तेजस्वी. का है. Oh, नहीं, I think he is from 6A. That तेजस्वी. मैम नहीं मैम वो मैम ऑफलाइन क्लास में मैम आता ही नहीं था मैम. अभी ऑनलाइन क्लास में आना स्टार्ट किया है. Oh, ऑनलाइन में आना स्टार्ट किया है. Very good. माही कुमारी 6B. माही कुमारी 6B. Are you listening? Yes, ma'am. Yes, माही पढ़िए. चलिए माही.
During Hmm. this period, the king and most of people were the followers of Vaishnavism, Vaishnavism or or Shivism. Saivism. हाँ. They were followers of Buddhism and Jainism as well. There was no Conflict. among them. They all lived Harmoniously. harmoniously. Sun was also worshipped by many people. Many people. Many Yes. sun temple was built. The king give Grants. The grants kings and gave grants and donations. donation to all the religions without any Discrimination. discrimination. हाँ. It was a period of Revival. of Hinduism and Sanskrit language. Very good. बहुत अच्छा. Art and Next. Most of you have not opened your video today. This is not good. I'm unable to see all of you. I think today is the last day of our online ma'am. class. From मैम tomorrow you इसके have to बाद come. तो मैम Yes. यस मैम उसके बाद मैम उसके बाद परमानेंटली ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा मैम, मुझे मालूम है। गुड। यस मैम परमानेंटली, उसके बाद हमेशा ऑफलाइन होगा। हमेशा यस नहीं होगा ऑनलाइन क्लास। Yes, who is asking? Who is speaking? मैम जयंत कुमार। Very good. हाँ बोलो जयंत, what you are speaking? क्या बोल रहे हो? अल्टरनेट होगा। हाँ अल्टरनेट होगा। यस अल्टरनेट होगा आप लोगों का। अभी अल्टरनेट आना है। यस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता था, वैसे इस बार भी होगा? नहीं अभी ऑनलाइन में ही तो कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है। 6B से तो और नहीं आ रहा है। 6 से तो कुछ बच्चे भी आज के भी देखो तुम, हम बता देते हैं 6A से कितने बच्चे हैं, 6B से कितने कम हो। एक अर्कजा है 6B से और हरिओम है 6B से, तेजस्वी है, और आई थिंक कोई भी और बच्चा नहीं है 6B का। और एक माही है, माही और सारांश है और माही है। हाँ बस ओनली 4 और 5 स्टूडेंट्स। अभिज्ञान यू आर इन 6A ना? नो मैम 6B रोल नंबर 18। ओह 6B, अच्छा मैम आप ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाती थी? यस। चलिए और कौन है? मैम 6 स्टूडेंट है मैम 6B से। मैम 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट है ओनली। यस चलिए पृथ्वी संगम। चलिए पढ़िए। यस पृथ्वी संगम स्टार्ट। हेलो पृथ्वी संगम। यस आर यू लिसनिंग मी? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, now you start now. Art and architecture. Yes, ma'am. Start now. Art and architecture. The art and architecture during the Gupta period was highly developed in all its branches, that is sculpture, painting, temple building, metallurgy, music, etc. During this period, we find the beginning of temple building. Initially, there used to be one-room temples where the image of the main deity was installed with a decorated main gate. Later on, the size of the temples became larger and larger. The small one-room temple can be seen near the Sanchi Bhitargaon, Kanpur and Devghar.
देवग्रह, देवघर, मैम देवघर। Devghar, Jhansi. The temples were decorated with beautiful and artistic sculptures. Ajanta and Ellora, Aurangabad district in Maharashtra, caves present the best specimen of paintings and stone cut temples. Many images concerning Krishna Leela have been found in Rajhi districts of Bengal. All large image of Varaha of हाँ, 4th century, हाँ, बोलिए। 4th century images of Mahavir Swami and Mahatma Buddha are some of the fine examples of their excellence in sculpture making of that period. The most significant feature of this period's art and sculpture is that they are totally free from foreign impact. Okay, good. Next, who will read? Raise hand. जो पढ़ चुके हैं वो नहीं, जो पढ़ चुके हैं वो नहीं. Who will read? No one. Adarsh Kumar. Adarsh Kumar. Anika Shri, 6A. Aniket Anand, 6A. Aryan Hansraj, 6A. No. Janvi, 6A. Janvi, no. Rishita Bharti, Rishita Bharti. Rishita Bharti, are you listening me? No. Saransh, Shivam Raj, no. Akash Raj is coming, entering in the class. I think only children, you are passing your time in the class. When you are not giving any response to me, it shows that you have no interest in the class at all. This is very now language and literature of that period. Language means bhasha, literature matlab jo likha gaya. Gupta period was the golden period for Sanskrit literature. Kalidas adorned the court of Chandragupta II. Adorn मतलब उसमें उस कोर्ट में रहते थे, मतलब चंद्रगुप्त के कोर्ट में वो थे. He was the 9 James of the royal court. उनके कोर्ट में 9 रत्न थे, तो कालिदास was one of them. उस 9 में कालिदास भी थे. अब his most famous works are अभिज्ञान शकुंतल, मालविका अग्निमित्रा, कुमार संभवा, रघुवंशा, मेघदूता, and many others. Bhasa wrote, this is a name. Bhas wrote 17 plays during this period. Vishakhadatta, Mudra Rakshas play is well known. Poet Hari Sena praised the conquest of Samudragupta. Allahabad Prasasti, Pandit Vishnu Sharma, work Pantantra. Pantantra, आप लोग पढ़े हैं पंचतंत्र को कि नहीं पढ़े हैं? Yes, ma'am. मैम नहीं। नहीं पढ़े हैं? अर्कजा ने पढ़ा है? अर्कजा, you have told? Yes, ma'am. तो आपको पंचतंत्र की कोई कहानी याद है? यस मैम, पापा सुनाया करते थे एक पंडित की कहानी, जिन्होंने जो कौन सी कहानी? कोई बोलिए. बकरी ले जा रहे थे तो सब उन्हें कह रहा था वो कुत्ता है, तो बोलिए. वह याद है. कौन सा? बोलिए, सुनाइए. और एक पंडित थे, वो अपने कंधे पे एक बकरी को ले जा रहे थे ताकि वो उसे पाले. वहीं रास्ते में उन्हें 3 चोर मिले. वो तीनों चोर सोचे कि अब इनका बकरी हमें चुरा लेना चाहिए कुछ दिमाग लगा के. तो वो लोग सोचते हैं कि हम तीनों बारी बारी इसको बोलेंगे कि ये तो बकरी नहीं, ये तो कुत्ता है. तब वो सोचेगा अरे ये तो बकरी हम ले जा रही हैं, इन लोगों को कैसे कुत्ता दिख रहा है. तो फिर वो उस पंडित उन लोग के बात में आ गया और वो उस बकरी को छोड़ दिया. अब इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए. वेरी गुड. कोई और है जो इस कुछ पंचतंत्र की कोई कहानी जानते हैं? एनीवन? सारांश? सारांश को पता है पंचतंत्र की कोई कहानी?
सारांश अभिज्ञान सिन्हा। यस अभिज्ञान, अभिज्ञान कौन सी नो कहानी मैम, पता नहीं है? पता है मैम को, पंचतंत्र की कोई कहानी नहीं पता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? पृथ्वी संगम, पंचतंत्र की कहानी पता है कोई? पृथ्वी संगम, हरिओम कुमार। No, ma'am. पंचतंत्र क्यों लिखा गया था पता है आप लोगों को? एक No, राजा ma'am. थे, तो उनके बच्चे जो थे वो पढ़ते नहीं थे बिल्कुल। जो नहीं पढ़ते थे तो राजा को अपने बच्चों को पढ़ाना था, तो किसी ने कहा कि पंडित विष्णु शर्मा इज अ वेरी गुड टीचर, वो आपके बच्चों को पढ़ा देंगे। तो पंडित विष्णु शर्मा के पास वो अपने बच्चों को ले गए और उन्हें छोटी छोटी कहानियों के से पढ़ा दिया। ठीक है, उसी में क्या है कि स्टोरी। यस यस यस, एम आई ऑडिबल और नॉट टू यू? एम आई Yes, ऑडिबल? Yes, you are ma'am. audible. यस, हाँ यस आई एम। तो जिसमें जैसे अर्कजा ने एक सुनाया, तो उसी तरह का एक है कि एक जो था बाघ था, लालच बुरी बला। स्टोरी का ये था कि कहीं लालच नहीं करना चाहिए। एक बाघ था, बहुत बूढ़ा हो गया था, तो जब वो बूढ़ा हो गया था तो अब क्या होगा, तो उसे कुछ भी शिकार को वो मार नहीं पाता था। तब अब वो भूख सा रहने लगा। जब भी भूख लगती थी तो वो सोचता था क्या करें, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक बार एक पानी में जा करके वो खड़ा हो गया और हर किसी को, उसके हाथ में सोना का 2 कंगन था, जो किसी को मारा था, खाया था, और उसके बॉडी से अपने पास रख गया था, और हर किसी को बोलता था आओ और ये इस कंगन को ले लो। तो हर कोई सोचता था कि ये तो ये बाघ है और कंगन लेने जाएंगे तो ये मार कर खा जाएगा। लोग उसकी बातों में नहीं आ रहे थे। तब एक ब्राह्मण था, लालची था, तो वो उसकी बातों में आ गया। तो पूछा कि भाई तुम कंगन क्यों देना चाहते हो? तो बोला कि हम तो बहुत अब बूढ़े हो गए हैं, अब हम कभी भी मर जाएंगे, तो हम चाहते हैं कुछ दान दे दें। मैंने बहुत पाप किया, बहुत लोगों को मारा, इसलिए मैं ये कंगन दे देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि कैसे विश्वास करें कि तुम्हारे पास हम आएंगे, तुम हमको नहीं मारोगे? बोला कि विश्वास कर लो, क्योंकि देखो मेरा दांत भी टूट गया है, पानी में खड़े हैं, और हम किसी को मारने के लिए नहीं, हम मतलब प्रायश्चित कर रहे हैं, आई एम रिपेंट, प्रायश्चित कर रहे हैं, अफसोस हो रहा है कि द वर्क आई हैव डन। तो उसके बाद ब्राह्मण लालच में उसके पास गया, तो वो पानी में जहाँ खड़ा था वहां पर क्या था, दलदल था, लैंड वाज मैसी, और उसी दलदल में वो फंस गया। उसके बाद क्या किया, बाघ उसको मारकर खा गया। तो स्टोरी ये बताता है कि लालच नहीं करना चाहिए, हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। और कोई बच्चे जिनको कहानी पता है, इसमें से कोई बच्चा? एनीवन? यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर स्टोरी इफ यू आर नोइंग। अगर आपको पता है, इफ यू वांट टू शेयर योर स्टोरी, तो आप बता सकते हैं। एनीवन? No, ma'am. No, ma'am. नो। यस नाउ, तो फिर से वापस आते हैं। नाउ पेज नंबर इज 138। पंडित विष्णु शर्मा वर्क पंचतंत्र इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विद मोरल टीचिंग। मोरल टीचिंग मतलब वही लालच नहीं करना चाहिए और जो भी है उसका। तो दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज एज वेल। कहता है कि इस समय जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ। मुझे कहानी पता है कौन सी कहानी बताइए, बताइए मैम, अर्कजा। लायन एंड रैबिट वाला। कौन सा बताइए, सुनाइए लायन एंड रैबिट का। कि जंगल का राजा शेर था और वह हर दिन एक एक जानवर को बुलाता था अपने पास और उन्हें खाता था। तो इस बार थी खरगोश की बारी, और पर खरगोश को डर नहीं लग रहा था। उसने अपना दिमाग लगाया और उस शेर को जाकर कहा कि तुमसे भी बड़ा शेर है जो मुझसे कह रहा है कि अपने राजा को बुलाओ और तुम्हें धमकी दे रहा है। तो वह शेर उसके पीछे पीछे आया और खरगोश उसे कुएं तक लेकर आया। पर शेर मूर्ख बन गया और उसे लगा कि कुएं में जो उसकी परछाई है वह कोई दूसरा शेर है, और खरगोश ने कहा कि तुम उससे लड़ने उस कुएं में कूद जाओ। तो वह शेर उस कुएं में कूद गया और खरगोश और पूरा जंगल उस शेर से बच गया। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बट ये एक मोरल स्टोरी है, आई डोंट थिंक इट इज फ्रॉम पंत, लेकिन कहानी बड़ी अच्छी है ये। और कोई बताएंगे? वेरी गुड पृथ्वी संगम। और कौन बताएंगे? और किन्हीं को कुछ आता है इन ये स्टोरी? यस मैम, अभी मेरे पापा ने मुझे एक कहानी बताई। कौन सी एक कहानी? वो लालच नहीं, अपने दो बिल्लियां थी, वो दोनों बिल्लियों के पास रोटियां थी, ऐसा शायद से 27 रोटियां थी। अब वो सोच रही थी कि अब इन रोटियों को हम लोग आपस में बांट लेते हैं, लेकिन वो आपस में बट नहीं पा रहा था। तो फिर इस परेशानी को देख के एक बंदर आता है उन लोग के पास, बोलता है मैं तुम लोग की मदद कर देता हूँ। वो बंदर एक रोटी इसको एक बिल्ली को दे रहा था, दूसरी बिल्ली को दे रहा था, कभी इस बिल्ली में ज्यादा कभी उस बिल्ली में ज्यादा, तो वो हर प्लेट से एक एक रोटी खाते जा रहा था। ऐसे करते 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 बस एक रोटी बचा, और वो रोटी बोला बंदर कि देखो मैं तुम लोग का इतना मदद किया हूँ, अब मेरे को उसके बदले भी कुछ इनाम मिलना चाहिए ना, तो मैं ये रोटी अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसी से पता चलता है कि अपना जो भी झगड़ा झंझट है वो आपस में सुलझा देना चाहिए, दूसरे तीसरे को नहीं बुलाना चाहिए। नहीं है मैम लेना मैम चाहिए। मैं भी Very एक good. बताना चाहता हूँ मैम। मैम बताइए मैं भी एक चीज अभिज्ञा। बताना चाहता हूँ यस बताइए। मैम। ये पंचतंत्र से तो नहीं है मैम, इसमें ये है मैम, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हाँ बताओ, हाँ, बोलो। मैम एक समय की बात है मैम, एक जंगल में एक शेर रहा करता था मैम। तो मैम वो एक दिन मैम अपने शिकारी को मैम अपने शिकार को खा के मैम सो रहा था मैम। तभी एक मच्छर उसके पास भिनभिनाता हुआ आता है और भिनभिना रहा था। और फिर शेर बोलता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर मच्छर बोला कि खा के दिखाओ। तो वो बहुत जहाँ कभी उसके नाक पे बैठ जाता था, तो कभी उसके आँख पे। तो जो शेर था अपने पंजे से अपने आप को घायल करता गया। फिर आखिरी में शेर ने कहा ठीक है बाबा, तुम ही आ जाओ, मुझे चैन से सोने दो। और अब तो मच्छर को तो घमंड हो गया था। और फिर उसके बाद वो जाता है एक हाथी के पास और हाथी को बोलता है, ए सुनो हाथी, मैं अब इस जंगल का राजा हूँ, शेर ने मुझे खुद कहा है, तुम अपने सर झुकाओ। हाथी ने सोचा कि कौन ऐसे पागल से कुछ बोलेगा, चलो तो सर झुका लिया और चुप चला गया। वही एक लोमड़ी उसे देख रहा था, उसके पास एक अच्छा आइडिया आया। फिर उसको जाके बोला कि पता है मच्छर, पता है तो मैं तुम्हें अपना राजा मानता हूँ, बट एक मकड़ी है ना, तुम्हें बहुत बुरी बुरी बातें कह रही है कि तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो, तुम बहुत छोटे हो। तो वो मच्छर गुस्सा हो जाता है, तो मच्छर आता है मकड़ी के पास, तो मकड़ी के जाल में फंस जाता है। और फिर जब उसे लोमड़ी देख रहा होता है तो हंस रहा था, मनी मन हंस रहा था। और फिर मच्छर का क्या हुआ वो बताया नहीं गया। अच्छा, वो फंस गया उस जाल में। वेरी गुड, यस बहुत मैम, बढ़िया। इसलिए कभी घमंड नहीं करना घमंड नहीं चाहिए। करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस स्टोरी सेशन। कोई और बोलेंगे? किन्हीं के पास और कोई स्टोरी है? और है किन्हीं के पास? मैम एक कॉमन स्टोरी और है। बताओ। मैम एक बहुत कॉमन है मैम, सबको पता होगा मैम। एक खरगोश और एक रैबिट के बारे में। सॉरी, एक कछुआ का। खरगोश और एक कछुए। यस मैम। हाँ तो मैम नहीं तो एक हम मैम तो सुनाते हैं तुमको। यस मैम। हाँ सुनाओ अभिज्ञान, सुनाओ मैम अभिज्ञान। मैम एक समय एक कछुआ रहता था, और मैम एक रैबिट और मैम एक खरगोश था मैम। मैम कछुआ हमेशा चुपचाप धीरे धीरे चल के कभी खाना खाता, कभी पानी पीता, और खरगोश उसे हमेशा देखता और चिढ़ाता कि कितना धीरे चलता है, कितना धीरे चलता है। एक दिन कछुए से रहा नहीं गया, और उसने ये कहा कि अगर मैं इतना ही धीरे चलता हूँ तो मेरे साथ एक दौड़ लगाओ। तो रेस लगाओ, हाँ। दौड़ लगाओ, तो रेस लगाओ। तो फिर खरगोश ने बोला ठीक है। और जैसे ही ये बात पूरे जंगल में फैली, बहुत सारे और जानवरों ने इसमें भाग लिया। इसमें हाथी, चूहा सब थे। कम से कम 3 या 4 लोग थे, 4 जानवर थे। तो जब स्टार्ट हुआ रेस, जब दौड़ स्टार्ट हुआ, तो रैबिट मतलब मैम खरगोश बहुत तेजी से दौड़ रहा था। इतना तेजी से दौड़ रहा था कि वो बहुत दूर आ गया, और खरगोश अपना धीरे धीरे चल रहा था।
कछुआ और धीरे उसमें धीरे जो चल रहा था। हाँ। यस मैम कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और बाकी जो हाथी था वो पानी में खेल रहा था मैम, उसको रेस की परवाह ही नहीं थी। और मैम जो चूहा था वो चूहा कहीं दलदल में फंस गया था। तो अब यही दोनों लोग बचे थे। खरगोश सोचा कि ये कछुआ को आने में बहुत टाइम लगेगा और सो जाते हैं। तो मैम कछुआ तो सो गया। अब मैम खरगोश तो सो गया। अब कछुआ धीरे धीरे चलते चलते खरगोश तक पहुंच गया। उसने सोचा कि चलो खरगोश को जगाते हैं, पर उसने बाद में यह सोचा कि अगर खरगोश को उठाएंगे तो मैं तो ये दौड़ हार जाऊंगा, इसलिए वो अपना धीरे धीरे आगे चलते चलते रहा। करीबन 1 घंटे तक ये दौड़ चलने के बाद जब खरगोश की आंख खुली तो वो उसने यह देखा कि कछुआ। खरगोश तो कब का पार कर चुका है, और जबकि कछुआ। कछुआ पार कर चुका है, और जबकि खरगोश बहुत नजदीक था जीतने से, बहुत ज्यादा ही नजदीक था। जैसे उसकी आंख खुली तो उसे सब लोग सम्मान कर रहे थे। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा तेजी से नहीं मिलता है, स्लो दिमाग से और धीरे चलने से भी हम लोग जीत सकते हैं। प्लानिंग से कभी हार नहीं माननी चाहिए। यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छी Yes, कहानी थी। किसी और को कुछ पूछना है? किसी को No, कुछ ma'am. पूछना है? No, Anyone है? ma'am. किसी को कुछ पूछना है? No, No, ma'am. ma'am. Yes. Anyone has query? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No किसी को- queries. हाँ, इसी लेसन को पढ़िएगा आप लोग। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो कर लीजिए, पूछ लीजिए, और अदरवाइज आप इसी लेसन को पढ़ेंगे। We will complete this lesson. कल क्लास में मिलते हैं। Meet you tomorrow in the classroom. Ma'am. Yes, Yes. ma'am. Ma'am, I Yes, will Abhi. come tomorrow. Yes, yes, yes. Okay, ma'am. Very good day. किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। नो मैम, मेरा मैम पूरा मैम परसों मैम सबका मैम कॉपी जरूर चेक करिएगा मैम। मैम भले ही मैम अगर कोई बच्चा मैम मैंने जितना भी मैम आप जो कराती थी ना मैम 1 वर्ड क्वेश्चन मैम, वो मैंने एक रफ कॉपी में लिखा था मैम। वो रफ कॉपी गलती से मैम होते हैं ना मैम जो कबाड़ Yes, लेते yes. हैं, उनको दे दिया मैम। अब वो कहाँ अच्छा। चलेगा मैं ढूंढा पर नहीं मिले मैम। अब Okay. दूसरा कॉपी दे रहा था मैम, गलती से वो चला गया। Okay, okay, okay. Have a मैम good day. मैम मेरे पास सारा चीज यस मैम, मेरे पास सारा नोट्स है मैम। मैम पूरा चैप्टर मैम कंप्लीट कर चुका हूँ। Okay, have a good day. Have a nice day, ma'am.